We all work with one infinite power. We all guide ourselves by exactly the same laws. The natural laws of the universe are so precise that we don't even have any difficulty building spaceships. We can send people to the moon, and we can time the landing with the precision of a fraction of a second. Wherever you are, you must know that we are all working with one power, one law. It's attraction. So, today's podcast is all about how our mind actually works and how is the law of attraction is related to our lives. The guest joining me in today's podcast is Miss Jigyasa Rajbajpayee. As you all know her as an author, to get to know more about her, you can listen to a previous podcast. But for now, apart from writing section, she has also got a spiritual side. So was the introduction okay? Yes, of course, it was huge, and I'm really excited for today's podcast. So, shall we start? Yeah, sure, we can start. So let's start with the most acknowledged question. Do you believe in spirits? Exactly. I can't say I don't believe, but I can't say that I believe. Yeah. So mostly I am like moreover a girl who believes in vibes. Good vibes, bad vibes, something like this. Okay, so as you said that you're a girl who believes in vibes, why do we get good vibes or bad vibes from a certain people? Okay. So the word vibe is often used to describe a mood. Yeah. Or a feeling that you pick up from someone or something. For example, you may say you pick up a good vibe when you are around a certain person. Or you may say that you get a negative vibe when you walk in a certain part of a city, or go for a person or a neighborhood. Okay? In all of these cases, the word vibe is used to describe the mood or a feeling which you are experiencing. In short, a vibe is equal to a mood or a feeling. The word vibes actually come from the longer word vibration, right? We don't generally use this word, vibration one. But in the vibrational world, there are only two kinds of vibration. One is positive, another one is negative. Yeah. So what we actually, emit, every mood or feeling cause you emit. Yeah. Okay? Send out or offer a vibration, whether positive or negative. If you go through the dictionary and select every word that describe a feeling, you would be able to put them into either of these two categories. Yeah. Each word will describe a feeling that generates a positive vibration or a feeling that generates a negative vibration. Negative vibration, yeah. Yes, exactly. Each one of us sends out either of the vibration. Positive and negative again. Yeah. In fact, we are always sending a vibration. Okay? Even if we are not thinking. If we are thinking, it depends. Negative hai ya positive hai. Yeah. It can be anything. So what do you think about the animals or babies who can sense good vibes or the bad vibes? So the reason you are sensing these, so-called bad and good vibes from certain people, person, animal, thing, whatever. Yeah. It's not because they are literally vibrating. It's because these are giving us a waves that say they are positive or negative. Yeah. Suppose I'm talking to you. Okay? We are in touch. Yeah. For so long, and things are going so good around us. I'm feeling so happy with you, blah blah blah. So, I'm feeling positive with you. Okay? So that means our vibes are positive vibes. Rather than if I am with somebody else. Yeah. Okay? And he or she is giving me a negative vibes. मेरे काम नहीं बनेंगे, मेरा कुछ नहीं होगा, या मुझे लगेगा यार इस इंसान के पास जाती हूँ तो कुछ सही नहीं होता है. So these are the reasons. ठीक है? Okay. And not to be little, all these universe is interconnected, right? Yeah. Or hippie stuff. But the real reason for this is actually just very simple, So it is very, it's understood कि जो हम feel करते हैं, हमारे every person has his or her intuition power. Like
what we say, sixth sense, कि हम इसके पास जाएंगे तो ये होगा, उसके पास जाएंगे तो ऐसा होगा, और भी हम लोग और भी थोड़ा चीप वे में बोल सकते हैं इसको कि वो हमारे लिए लकी है, राइट? तो these are the things कि इससे ये हमारे साथ है तो हमारे काम बन जाएंगे, जस्ट बिकॉज उसके पास से इतनी ज्यादा पॉजिटिव वेव्स आ रही हैं, वाइब्रेशंस हमें मिलती हैं, तो वी जस्ट डू लाइक दिस. अच्छा, फॉर लाइक वी लव समवन, उसके सराउंड रहते तो हमें क्यों इतना अच्छा लगता है, क्यों इतनी पॉजिटिविटी आती है? यस, क्योंकि हम उनको महसूस भी करते हैं, ठीक है. और किसी के पास एक अलग सी निगेटिव चीज होती है, उसको देख कर ही लगता है अरे कहाँ आ गए यार, कौन है ये. तो इट हैपेंस. सेम गोज विद एनिमल बेबीज, दे कैन सेंस. वो कहते हैं ना कि घर में कुछ भी होता है जानवर अपने साथ ले जाता है. इट हैपेंस. ब्यूटीफुल आंसर, ब्यूटीफुल, थैंक यू. सो हम लोगों ने लास्ट पॉडकास्ट में बात करी थी जिसमें आपने बताया था कि आपकी लाइफ के में एक ऐसा फेज आया था व्हेन यू स्टार्टेड लूजिंग योर इंटरेस्ट इन योर डेली एक्टिविटीज. सो वाज इट अ डिप्रेशन? Actually, we can say it a depression, and it was a depression probably. So actually, what is depression? Okay, your question is like, है ना, कि what is a depression? Depression is something, you are depressed about something. आपका मूड नहीं है कुछ करने का, you are losing interest in everything. आपके घर में कुछ भी हो रहा है, बर्थडे पार्टीज हैं, you are like avoiding them. कुछ करने का मन नहीं हो रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, दोस्त से मिलने का मन नहीं कर रहा है, आप बस पड़े हो staring at the wall और ceiling और fan, looking it for hours and hours, और you just constantly thinking. So what was your experience? मतलब आपके साथ मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा था? Of what? Of depression? Of being in depression? What was happening to me? Okay. Being into a depression was not at all good. ठीक है. Depression is something कि आप एक मिनट के लिए भी खुश नहीं रह सकते. आप permanently वो हो, sad हो. ठीक है. अनहैप्पी समथिंग एल्स की अनहैप्पी में होता है कुछ देर के लिए आप सैड हो, और बाकी टाइम आप खुश हो. डिप्रेशन इज समथिंग आप कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली आप बस दुखी हो. ऑल यू कैन डू इज बीइंग सैड, क्राइंग अबाउट द थिंग्स. और कुछ भी चीज होती थी हम उसको बढ़ा चढ़ा कर अपने दिमाग में रखना. समथिंग इज somebody said something to me, कोई छोटी सी बात भी बोल दे तो उसको ज्यादा exactly, कि तुम ऐसी नहीं हो, तो मेरा दिमाग उसको 10 तरीके से बताने लगेगा कि तुम ऐसी नहीं हो, तुम वैसी नहीं हो, देखा तुम किसी लायक नहीं हो, ऐसा नहीं है. तो इट हैपेंस, आप अपने दिमाग में उस चीज को एग्जैजरेट करके दिखाने लगते हो. आपका वर्ल्ड जो है उस पर्टिकुलर चीज में ही सराउंड करने लगता है कि अरे ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, मैं ही गलत हूँ, मेरे साथ ही है. तो आपको ऑलरेडी आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को अपने में बसा लेगा. तो जैसा आपने लास्ट पॉडकास्ट में बताया था, तो क्या वही रीजन था डिप्रेशन का या फिर कुछ और भी मतलब चीजें हुई थी आपके साथ? द थिंग इज दिस कि दैट वाज नॉट द ओनली रीजन. मैंने बताया ना कि आपका दिमाग और 10 तरीके मतलब 10 प्रकार की चीजें ढूंढने लगेगा फॉर बीइंग इन सम स्टेज यू आर. अब तुम खुद सोचो, इफ यू आर सैड अबाउट वन पर्टिकुलर थिंग, लेकिन आपका दिमाग उसी टाइम आपको 10 चीजें बताने लगेगा कि नहीं तुम इस चीज के लिए तो हो ही हो, साथ में उस चीज के लिए भी हो. लाइक सपोज मम्मी ने डांट दिया, फिर हमें लगने लगा मम्मी तो प्यार नहीं करती, डैडी भी नहीं करते होंगे, दादी भी नहीं करती है. तो आपका माइंड ऑलरेडी वो सारी चीजें खींच लाएगा जो कि कभी भी आप, जैसे किसी ने भी आपको डांटा होगा, वो सब आपको याद आने लगेगा. किसी एक ने डांटने पर 10 डांटने वाले याद आकर क्या ऐसा लगता है अब तो कोई प्यार नहीं करता है, अब तो फलानी चीज नहीं होनी है. तो हाउ डिड यू ओवरकम थ्रू दिस ऑल? मतलब ओवरकमिंग विद डिप्रेशन वाज लाइक very terrible because वो एक दिन का खेल नहीं था. 2.5 साल लगे. It was a way long time, a very long time actually. The thing was this कि how I overcome with depression was कि पहले मैं घर पर ही रहती थी, लेकिन luckily I got admission बाहर. तो जब बाहर जाना हुआ तो मेरा थोड़ा दिमाग जो है वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हुआ उस चीज से. I was sad, I was having few more things of my colleges. तो वो भी चीज होने लगी, तो मैं थोड़ा थोड़ा भूलने लगी उस चीज को एक टाइम के बाद. लेकिन मतलब समझ लो 2 साल हो गए थे. उसके बाद जब मुझे जाना था वहां पर, कॉलेज सब कुछ नया था, तो
या इट टुक मी अ टाइम, लेकिन जब मैं बाहर रही तो मेरा थोड़ा दुखी होने का जो सिस्टम होता है ना वो थोड़ा कम हो गया, क्योंकि अब मैं 4-5 लोगों से मिल ही रही हूँ, ठीक है, आई एम इंटरेक्टिंग विद देम, तो वो थोड़ा कम हो गया। उस चीज ने मेरे दिमाग में जगह बनानी कम कर दी। लेकिन जैसे फिर मैं इधर आई अपने होम टाउन में, थिंग्स started taking, you know, again they were like हाँ recalling and नहीं कहते ट्रैक पर आ गई वापस से कि नहीं, you are sad, you have to be sad now, तो वैसा होता रहा। लेकिन then after एक टाइम के बाद ना इंसान को तरस आने लगता है खुद पर कि why are you doing it to yourself। वैसे ही मुझे आया कि why are you doing मतलब it to yourself, कि ऐसा क्यों कर रही हो, क्या हो गया है, इतनी बुरी तो जिंदगी नहीं है। जब लोगों को देख रही हूँ हंसते खिलखिलाते, मुझे अपने दिन याद है, oh my god, once upon a time I was very happy, ये वो। तो फिर मुझे लगा नहीं, अब तो मुझे करना ही करना है। फिर ऐसे ही मैं ओवरकम हुई। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग इन बिटवीन। तो आपको मतलब क्या लगता है कि ये जो 2.5 साल लगे आपको ओवरकम करने में, क्या ये मतलब ये टाइम पीरियड शॉर्ट हो सकता था थोड़ा सा, अगर आपका एनवायरनमेंट पहले चेंज हो जाता, या फिर डेफिनेटली दैट इज व्हाई वी से इफ यू आर इन डिप्रेशन टॉक। लेकिन मेरे साथ ऐसा था कि मैं बात ही नहीं करना चाहती थी किसी से। मुझे लोगों ने अप्रोच तो करा कि बात करो, लेकिन मैं नहीं चाहती, क्योंकि जब मैंने अपने आप को खुलने की कोशिश करी तो 1-2 लोगों ने मुझे जज कर लिया कि कहते नहीं कि यहाँ पर मेंटल इलनेस इज नॉट अ मेंटल इलनेस, इट सेज कि पागल हो गई है लड़की, फालतू का सोच रही है, इसके पास तो और कोई काम ही नहीं है, तो दुखी हो रही है, टाइम पास करना है इसको। तो जब मुझे ये लगा तो आई वाज मोर डिसहार्टेंड देन बीइंग इन डिप्रेशन वाज अदर थिंग, कि मैं किस चीज के साथ हूँ वो तो अलग हो गया, लेकिन मेरी वजहें बढ़ रही थी। इसीलिए मैंने एक टाइम बाद मैंने इंसानों से मिलना बंद कर दिया। अपने घर में भी मैं एक ही कमरे में रहती थी, ठीक है, तो मैंने वो सारी चीजें बंद कर दी, इंटरेक्ट करना बंद कर दिया। तो इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम। So what was in your mind like when you were alone, मतलब जब आप किसी से बात नहीं कर रही थी? Alone. Were you willing to talk to someone, मतलब कोई right person मिल नहीं रहा था, या फिर? I wanted to talk to somebody, but on the other hand I really don't wanted to, because मेरे साथ चीजें हो गई थी ऑलरेडी, मुझे जज कर लिया गया था उस चीज पे। तो फिर मुझे लगा अरे क्या ही जरूरत है, इतने सारे क्वेश्चंस लोग पुट अप कर रहे थे, और कि ऐसा क्यों हुआ, वो क्यों कर रहा था, तुमने ऐसा क्यों कर दिया। अच्छा, सुशांत सिंह राजपूत मतलब जो हुआ था उसके साथ, वो as we all know, what do you think, can depression really lead to that much extent that somebody can kill themselves? Yeah. Oh my god. Yes, it can, because जब मैं भी थी तो एक कमरे में बैठकर सुसाइडल थॉट्स एक टाइम पर आ जाते हैं। जैसे कि बताया ना कि आपका दिमाग को इस टाइम इतना एग्जैजरेट कर आपके सामने चीजें रख देता है कि आपको सिर्फ एक चीज रीजन नहीं मिलेगा, आपको 10 चीजें और मिलने लगेंगी कि ओ माय गॉड यू डिड दिस, यू गॉट 10 मोर रीजंस। सो व्हाट डू यू थिंक, मतलब उसके पास कोई एक रीजन आया होगा तो उसके पास मतलब 9 और थॉट्स आ गए होंगे साथ में? ऑब्वियसली बिल्कुल आ गए होंगे, क्यों नहीं। जब एक नॉर्मल इंसान तो वो भी था ना कि जब उसको कहीं से कुछ हुआ या फिल्म नहीं मिली या कुछ नहीं हुआ तो उसने भी सोचा ओ माय गॉड अब आगे भी शायद ऐसा हो सकता है। तो उसके दिमाग में भी अपने स्तर की चीजें होंगी। न्यूज़ ये आ रही कि उसको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, आउटसाइडर एंड ऑल। हॉलीवुड इज ऑल अबाउट दिस, बिकॉज़ वी ऑल आर ह्यूमंस एंड वी ऑल नो दिस कि स्टार किड्स का अलग रहता है अपना, ठीक है, इट्स वेरी इजी स्टार किड्स के लिए कि हाँ ये कर देंगे वो कर देंगे, बट इट्स नॉट इजी फॉर द वन हु इज सेल्फ मेड। कि आप अपने बच्चे को लॉन्च कर रहे हो या अपनी फूफी की बच्चे को लॉन्च कर रहे हो या किसी को भी लॉन्च कर रहे हो, दैट इज नॉट अ इशू इज दिस कि आप बराबरी में नहीं रख रहे हो। बस मतलब फॉर एग्जांपल हाँ लाइक एक ऑडिशन हो रहा है तो वहाँ पे एक नॉर्मल बंदा है, एक स्टार किड आया, एग्जैक्टली, और अगर नॉर्मल आदमी सिलेक्ट हो गया है उसको रिप्लेस कर दिया जाए तो that will be star kid. Yes, definitely. ये नहीं होना चाहिए। बाकी कोई किसी को कुछ भी करे, that is not bothering us all. ठीक है, बिकॉज हम लोगों को खुद इंटरेस्ट होता है कि ओ माय गॉड ये तो सैफ की लड़की है सारा, ये महेश भट्ट की लड़की है आलिया, तो वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, वी लव देम, बट द थिंग इज जस्ट कि आप डिस्क्रिमिनेट मत करो, क्योंकि सेल्फ मेड स्टार जो होता है ना उसको पाई का हिसाब होता है कि वो कहाँ तक वो मतलब आज पूरी दुनिया सुशांत का नाम जानती है, तो उसने अर्न करा है फ्रॉम वेरी लिटिल। कोई स्टार किड ने टीवी सीरियल्स पे काम करना नहीं चालू करा था,
ठीक है। हाँ। लेकिन उन लोगों ने टीवी सीरियल्स पे भी करा, कार्तिक आर्यन ने भी न जाने कितने धक्के खाए थे, कितने ऑडिशंस दिए थे, तब जाकर वो कहीं पर पहचाना गया था। तो इट इज वेरी इजी फॉर स्टार किड्स एंड वी ऑल नो कंगना रनौत, उसने भी कितना स्ट्रगल करा था। तो इट हैपेंस। द थिंग इज बेसिकली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही कि हमें किसी से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप लोग बराबरी का हिस्सा नहीं दे रहे हो। आप अच्छा, ये सोशल मीडिया पे तो अलग ही भसड़ चल रही है। कैसी? लाइक मतलब जैसे ये न्यूज आई, लोग ये देख रहे हैं कि इसको पोस्ट कैसे करना है। Okay, that mental disorder one. Yeah. Talk to me. Talk to me. I don't know why whole country is being very professionalist to this. I don't know why. अभी मतलब जिन लोगों को डिप्रेशन का मतलब भी नहीं पता है, वो लोग भी अपने पे करेंगे डिप्रेशन इज ऑल दिस, भले ही वो खुद ना रीड करें बट पोस्ट जरूर करेंगे पहले, क्योंकि उनको एक लाइन दिन गई ना, टॉक टू मी व्हेन यू नीड मी। तो उनको सिर्फ इतने का मतलब पता है, और सब हर दूसरे के पास तो यही पोस्ट पड़ी रहती है सोशल मीडिया में कि टॉक टू मी इफ यू डोंट नो एनीथिंग, भले ही उस चीज का वो रिप्लाई ना करे बट या टॉक टू मी नाउ। कोई बात कर रहा है वो डिप्रेशन में रियल में है कि नहीं है। वी मस्ट टेक केयर ऑफ दिस। मेरी समझ से ये है कि जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं उनको नहीं पता कि कोई उनको कितना प्यार करता है। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग यही खबर ले ले कि सुशांत के चक्कर में काफी फैंस ने अपनी जान दी शॉक में ही आके। तो नोबडी नोज हाउ मच समबडी लव्स यू। तो आपने तो सिंपली डाल दिया, अब वो आपको बहुत फॉलो करता हो, बहुत, कोई लड़की जैसे कि कोई भी इन्फ्लुएंसर लड़की हो, उसको कोई लड़की फॉलो कर रही है, लड़का फॉलो कर रहा है, कोई उसका बहुत बड़ा चाहने वाला है या फैन है, तो अगर उसको वो बहुत ज्यादा मानता है, अगर उसको नीड है बात करने की, तो अगर आपने नहीं देखा तो फिर क्या होगा? तो वो दिक्कत करेगा ना कि ओ माय गॉड, उसने तो बोला था कि बात कर रहा है या करेगी, और ही और शी इज नॉट टॉकिंग टू मी, ऑब्वियसली इट विल अफेक्ट। कि फिर क्यों डालते हैं इन्फ्लुएंसर जब आप हेल्प नहीं कर रहे हैं? देखा था कि एक टिकटॉकर था जी, he was making a video like कि see Sushant Singh Rajput has just committed suicide. Yeah, I came across to that. And just go through my Instagram profile, यहाँ पे click करो, वहाँ पे जाके मैंने reason बताया. He was just engaging his audience to come and follow him on Instagram. So is this it was of YouTube, I guess. Yeah, it was YouTube. But so it is the real influencing. धंधा है. It is the influencing, और मतलब क्या है? क्या ही बोलूँ, ये TikTok stars हैं. What can we do for it? मतलब टिकटॉकर्स को ही छोड़ दीजिए, वी विल नॉट गो इनटू द कंट्रोवर्सी। यूट्यूबर्स भी अभी जहाँ कहीं भी देखोगे, न्यूज चैनल्स एंड ऑल, हर जगह एक टैगलाइन है सुशांत सिंह राजपूत एंड हिज थंबनेल। अपने यूट्यूब चैनल पे सुशांत सिंह राजपूत के पुराने सॉन्ग्स डाल रही है, रीअपलोड्स कर रही है सॉन्ग्स को। क्यों कर रही है? उसके जाने के बाद क्यों कर रही है? इसीलिए लाइक्स मिले। आई डोंट नो व्हाई पीपल ऑलवेज सी देयर बिजनेस। आई डोंट नो, पता नहीं क्या मिलता है, कोई मर क्या नहीं। न्यूज चैनल्स वाले उनके घर पे जा रहे हैं कि सर आपकी क्या हाल है, मतलब क्या लगेगा यार, किसी फादर को क्या लगेगा उसका सच में कि वो अपनी पर्सनल लाइफ भी नहीं जी सकता चैन से। मतलब it is so ridiculous how people can do it. I have gone through one more news जिसमें नहीं बोल रहे थे कि सुशांत सिंह का क्या विकेट गिर गया, something like this. How ridiculous journalism is. Can you like think, मतलब हम ऑलरेडी शॉक पर है और आप क्या टैगलाइन लिख रहे हो, कैसा अट्रैक्ट कर रहे हो यार तुम? थोड़ा जेन्युइन लिखो, कोई नहीं पढ़ेगा। बल्कि आजकल तो अच्छी बात है कि पब्लिक इतनी जागरूक हो गई है कि तुरंत क्लेम करती है, लेकिन उसमें से भी कोई कुंद बुद्धि मिल ही जाता है जहाँ पर वो देखा करता है और शेयर करा करता है। बल्कि यू नीड टू रेस योर वॉइस अगेंस्ट इट। यार पता नहीं क्या हो रहा है इंडिया में। पता है एक न्यूज आई थी। कौन सी? मतलब एक परिवार था जी, अपने किसी मतलब रिलेटिव किसी को देखने गया था। वो आदमी वेंटिलेटर पे था। जी जी। उन्होंने वो उसका वेंटिलेटर का प्लग निकाल के कूलर का प्लग लगा दिया। एंड ही वाज जस्ट गॉन अनकॉन्शियस, और मतलब उसकी डेथ हो गई। मतलब उसने वो वेंटिलेटर का प्लग निकाल दिया, कूलर का लगा दिया। और उसको पता था कि वेंटिलेटर का है? नो। ओ भाई साहब, What kind of people are there in India? ये सिर्फ इंडिया ही में मिलता है। ये हाँ सिर्फ क्या इंडिया है, मतलब वो मर रहा है और तुम कूलर में बैठे हुए हो। मतलब क्या ही दिमाग है, किसी की जान चली गई यार। क्या बोल सकते हैं? It is so controversial. Yeah, it's nice to think that what you love actually loves you. What you desire desires you. What you want wants you. But is this what the famous quote said by Rumi? What you seek is seeking you. इसके बारे में आपका क्या कहना है?
मतलब मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि जिंदगी बहुत बड़ी है, ठीक है, और हम लोग के पास बहुत डिफरेंट सिचुएशंस आती रहती हैं लाइफ में, है ना। तो कभी हम लोगों को अच्छा लगता है, कभी हम लोगों को खराब लगता है, कभी ऐसा लगता है कि पूरा वर्ल्ड हमारे अगेंस्ट है ना, और कभी लगता है कि हम हर चीज डिजर्व करते हैं। तो बेसिकली ये सब कुछ थॉट प्रोसेस होता है। जो हम लोग सोचते हैं हम लोगों को बिल्कुल वैसे ही दिखने लगता है। अगर हम दुखी हैं तो हमें लगेगा सब दुखी तो हैं, अगर हम खुश हैं तो ऐसे लगेगा ऑटोमेटिकली हर चीज, हर मतलब दुनिया की हर चीज खुद ही अच्छी लगने लगेगी, आप जॉली जॉली सा फील करने लगोगे। तो ऐसा क्या है, ऐसा हम लोग क्यों कहते हैं? बिकॉज what we are seeking, it's already seeking. हम लोग क्या सीख कर रहे हैं? If we are seeking happiness, तो happiness तो हम लोगों को दोबारा सीख कर रही है ना। If we are seeking sadness, तो already हमारे पास इतने ज्यादा negative thoughts आ जाएंगे तो हम लोग और दुखी हो जाएंगे। Yeah, like as we have discussed earlier also, अगर positive environment में रहेंगे तो positive vibes ही आएंगी। Exactly, it all मतलब it depends upon vibes also। ठीक है, कि हम लोग actually क्या कर रहे हैं। हम लोग एक्चुअली हम लोग फ्यूचर के बारे में इतना ज्यादा सोच लेते हैं ना कि हम लोग आज नहीं जी पाते हैं। इतना ज्यादा हमारे दिमाग में टेंशन होती है कि कल क्या होगा, कल नहीं हुआ तो उसका क्या करेंगे। हम लोग आज कब जीते हैं। इतने ज्यादा मोटिवेशनल सॉन्ग्स बने हैं उसपे कि अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी, लेकिन पता नहीं व्हाई डोंट पीपल थिंक अबाउट इट कि हमें अपना आज अच्छा बनाना चाहिए। थैंक यू, दैट्स अ ब्यूटीफुल आंसर। क्या हुआ, रिकॉर्डिंग बंद हो गई है क्या? अरे नहीं, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में पूछना था, कैसे पूछे। ओके, थिंक अच्छा, ये बताइए लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है, पहले तो ये बताइए आप। अच्छा, मतलब व्हाट लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज समथिंग, बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज समथिंग व्हिच वी अट्रैक्ट। हिंदी ओके, मतलब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज समथिंग कि जिससे हम लोग कुछ पा सकते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स जिससे हम लोग पा सकते हैं कोई चीज। जैसे कि कुछ भी, क्या में जैसे कि हर चीज, हैप्पीनेस है, हेल्थ है, वेल्थ है, मतलब मेजर थिंग्स है जो लाइफ में हमको बहुत नेसेसरी है। खुश रहना बहुत जरूरी है, हेल्थ बहुत जरूरी है, वेल्थ बहुत जरूरी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक पर्सन की लाइफ में कैसे रिलेट कर सकता है? फॉर एग्जांपल मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा कि नहीं? अरे सबकी लाइफ में वर्क करता है, बट द थिंग इज दिस कि सबकी लाइफ में डिफरेंटली वर्क करता है। ओके, यस, इट वर्क्स अबाउट फॉर एवरीवन इन अ डिफरेंट वे। या इन अ डिफरेंट वे। तो आपके लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे वर्क करता है? मेरी लाइफ में ऐसा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या करना होता है, वी नीड टू इमेजिन कि वी ऑलरेडी आर दिस पर्टिकुलर थिंग, व्हाटएवर यू वांट टू बी। जैसे कि मैंने सोचा कि मुझे राइटर बनना है, पब्लिश्ड ऑथर बनना है, तो मैं इमेजिन कर रही हूँ कि मैं ऑलरेडी पब्लिश्ड ऑथर हूँ और उस पे वर्क करना है। सब कुछ है आपके पास, बस इट विल हैपन। आई डोंट नो फ्रॉम व्हाट एज आई थॉट कि मैं राइटर बनना चाहती हूँ। एंड लुक, वो कहते नहीं है कि किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको तुमसे मिलाने में। या एग्जैक्टली, वेल सेड बाय शाहरुख खान। या ओके। तो हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन से क्या क्या पा सकते हैं? पाने को तो हम लोग कुछ भी पा सकते हैं, ठीक है। वी कैन हैव व्हाटएवर, मतलब इट्स दैट वी चूज एंड वी इवन डोंट नो कि हाउ बिग इट इज। उन लोगों को मिल जाता है। मतलब सोचो, एक जैसे कि आई बिलोंग टू अ स्मॉल टाउन, राइट। मैं सोचा कि मैं ऑथर बनूंगी, तो कौन ही कर पाता है यार। मतलब बहुत सारी चीजें मिलती हैं, मतलब होती हैं। अच्छा, डू यू थिंक दैट ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या नेगेटिव वे में भी जा सकता है? अगर हम लोग कुछ गलत चीज आपने जैसे बोला कि आपको एक ऑथर बनना है, पब्लिश्ड ऑथर बनना है, दैट्स अ पॉजिटिव थिंग। मतलब आपने किसी अच्छी चीज के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मतलब यूटिलाइज किया। तो एक मतलब नेगेटिव थॉट भी हो सकता है कि यार इट डिपेंड्स, ऑब्वियसली नेगेटिव थॉट भी हो सकता है, पता नहीं किसको क्या बनना हो। मतलब अब कोई परमानेंटली ये does that also really works the same as is in your case? Yes, it works for both, no, negative positive, but it works differently. I told you ना, it works differently कि आदमी पता नहीं क्या चाह रहा हो। अब सपोज कोई चोर दिमाग में रख रहा है चोरी करनी है, तो वो चोरी करेगा ना। उसको तरीके आने लगेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। What I think is कि हमें कुछ चीज अगर यूनिवर्स से हम लोगों को प्रोवाइड करी है, we should use this in a good manner, in a positive manner.
क्योंकि भगवान कोई चीज गलत नहीं बनाते हैं, हम इंसान उसका गलत प्रयोग करते हैं. That's it. Okay, so how can we attract wealth in our life? हाँ? पैसा कैसे कमाए अपनी लाइफ में? अच्छा. पैसा plays a major role. You understand पैसा? It's not पैसा ना. पैसा रोजगारी होती है. अब हमें नोटों की जरूरत है. प्यार नहीं, पैसा चाहिए. हाँ, नहीं, अब कहते नहीं है. अरे कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि क्या पैसा बहुत है, प्यार चाहिए. लेकिन हमें क्या है, प्यार बहुत है, पैसा चाहिए. प्यार से घर नहीं चलेगा. पैसे से चलेगा. और पैसे से भी नहीं चलेगा, नोटों से चलेगा. रुपीज या क्या. ठीक है. ओके, सो व्हेन यू नीड मनी, ठीक है, इट इज अ पावरफुल फीलिंग विद इन यू. जैसे हम सोच रहे हैं हमें पैसा कमाना है, तो ये खुद में ही बहुत पावरफुल है. ठीक है. सो यू ऑफ कोर्स, मतलब if we use law of attraction, ठीक है, to have wealth, abundance and everything, we will continue to attract that. जैसे कि right now I don't have a job, and I'm constantly thinking about job, day night. I am wondering about, I wish I can have this, I wish I can have this. और एक टाइम पे मैं इमेजिन कर रही हूँ कि मेरे पास सब कुछ है, और आई एम बिलीविंग इट. ठीक है, मतलब यू आर इमेजिनिंग दैट यू हैव अ जॉब नाउ. पहले मैं बिलीव करती हूँ कि ये मेरे पास होगा जरूर. एक ना एक दिन नहीं कहते हैं कि होगा जरूर. तो और फिर मैं उसको इमेजिन करती हूँ. जैसे कि सपोज कोई आज बहुत बड़ा ऑथर है, जैसे चेतन भगत ले ले. I imagine him, ठीक है, in my dreams कि मैं कल उतनी फेमस होंगी as a author. ठीक है. एंड आई एम इमेजिनिंग कि मेरी 10 बुक्स निकल आई हैं, एंड आई एम यू नो सुपर हिट राइटर. ठीक है, लोग मेरी बुक्स का मतलब कंटेंट लेकर मूवीज बना रहे हैं, जैसे चेतन भगत की बनी है. एवरीथिंग लाइक हिम, अ लाइफ लाइक हिम, द लग्जरियस लाइफ. ठीक है. And I'm imagining it, and definitely I have received that thing. You know, I am just obviously उतना नहीं, लेकिन हाँ कुछ तो हुआ ना, कुछ उस पार्ट का. So it is a part of law of attraction. I somehow, I don't know when I started thinking, as I told you, ठीक है, earlier also, कि मुझे नहीं पता मुझे कब से ख्वाहिश थी राइटर बनने की, लेकिन मैं इमेजिन जरूर करती थी. And look, so as you said that मतलब how to attract wealth in our life. Yes, तो imagine, आप पहले बिलीव करो आपके पास पैसा आएगा. हाँ, तो पैसा आना क्या अच्छा है कि मतलब क्या है, मतलब ज्यादा पैसा आना? Abundance is already मतलब always good. Like if you see Bill Gates, जी, वो अपनी पोजीशन पे टिका रहने के लिए भी उसको काफी सोचना पड़ता होगा. मतलब यार मेरे पास एक का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बिल गेट्स का ही ले लेते हैं. if he उसके पास मिलियंस ट्रिलियंस में पैसा है, ठीक है, अगर वो अपना समझ लो, अगर वो मिलियन भी चैरिटी में डोनेट कर रहा है, तो उसी दूसरे सेकंड में वो सोचता होगा कि दूसरे दिन मैं ऐसे कितना कमाऊंगा. तो उसके दिमाग में 24/7 चलता है अबाउट हिज बिजनेस, अबाउट हिज वेल्थ. तभी तो वो कर पाएगा ना. जब उसके, अच्छा खुद भी सोचो, अगर उसको खुद नहीं पता होगा कि उसके अंदर ये काबिलियत है, क्या वो कर पाएगा? नहीं. इफ यू एंड आई वुड मतलब आर नॉट हैविंग द कॉन्फिडेंस इन आवरसेल्फ ओनली कि हम ये कर पाएंगे, तो ये कुछ भी ना रहा होता, कुछ भी ना होता, मैं यहाँ नहीं होती, तुम यहाँ नहीं होते. हमने कुछ तो सोचा होगा ना कि हम इतने कॉन्फिडेंस है कि ये होकर रहेगा. और look, you imagine and you are here. So like मतलब ये 24/7 ये सोचना वेल्थ वगैरह के बारे में इमेजिन करना is this good for मतलब ब्रेन के लिए गुड है? Obviously, क्यों? अब कुछ हमें नीड है अपनी लाइफ के लिए, तो मतलब 24 घंटे पैसा करना. अरे आई एम नॉट टॉकिंग एग्जैक्टली अबाउट पैसा यूं ही तो नहीं आएगा. यू नीड टू वर्क ऑल्सो, है ना. अब ये है कि सपोज आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब. अब मैं ये थोड़ी ना कहूंगी पैसा. इफ आई विल अट्रैक्ट मनी, इट विल गिव मी अ वेज कि कहाँ से पैसा आएगा. अब जैसे इफ आई एम अट्रैक्टिंग मनी, ठीक है, मैंने पैसे के लिए सोचा कि भगवान मुझे खूब सारा पैसा दिला दो, और मेरे दिमाग में चल रहा है, तो भगवान मुझे रास्ता दिखाएंगे कि बेटा डू दिस. तो व्हाट आई एम डूइंग, अब मेरे दिमाग में ये आया कि अब मुझे जॉब करनी चाहिए, तभी वहां से हम पैसा उठा सकते हैं. अब जॉब तो है नहीं, तो अब हमारा पहला स्टेप क्या हुआ?
अट्रैक्ट जॉब then and attract then money. wealth. Yeah. तो आपके दिमाग ने स्टेप्स निकाले कि डू दिस फर्स्ट, डू दिस सेकेंडली एंड थर्डली आपके पास कुछ है. Okay. जॉब मिलेगी, वेल्थ आ गया, सब तो है, यही तो चाहिए था. बस बढ़िया That's it. Obviously बढ़िया. तो दिस इज हाउ यू अट्रैक्ट एवरीथिंग, जस्ट नॉट वेल्थ. वेल्थ के साथ साथ हेल्थ, हेल्थ के साथ साथ हैप्पीनेस. मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज आज की डेट में कि आप खुश रहो. ठीक है, मनी कैन बाय हैप्पीनेस टू, आई गेस. बेसिकली एक बुक है, आई गेस सभी लोग जानते होंगे, ऑल आवर लिसनर्स टू, इवन आई गेस you will be also knowing this. The book is The Secret, if you know. Yeah, it is based on like law of attraction, right? itself. तो उसका एक मूल मंत्र है. उसका मूल मंत्र ये है, you believe. First step is believing in yourself, having confidence कि आप कर लोगे, आपके पास होगा. दूसरी चीज ये है, you imagine things. आप वैसे ही imagine करो कि आपके पास ऑलरेडी चीज आ गई है. एंड थर्ड उसका ये रहेगा, the output one. You will receive things. आपके पास होंगी वो चीज, जैसा आप सोचोगे you will receive that. The same. कहते नहीं जैसा सोचते आए वैसे ही इंसान बनता है. तो बिल्कुल सही कहा गया है. So we should always think positive, right? That was a really beautiful answer. Thank you. And thank you for coming to our show. Thank you Aryan for having me. I hope you all guys liked it. अगर पसंद आया तो Spotify पे फॉलो मारो, बढ़िया से फॉलो करो, 5 स्टार की रेटिंग दो अगर iTunes पे सुन रहे हो तो, और इसको शेयर करो यार, शेयर करो बहुत शेयर करो, बहुत शेयर करो. हाँ, और आई विल सी यू इन नेक्स्ट मंडे किसी और नए एपिसोड के साथ. इंटरप्ट यू आर्यन, आई मस्ट से टू ऑल लिसनर्स, प्लीज फॉलो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन योर लाइफ. इट इज रियली हेल्पफुल, रियली. बिल्कुल, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करिए, हमारे स्पॉटिफाई और आईट्यून्स पे फॉलो करिए हमारे पॉडकास्ट को. नेक्स्ट गेस्ट देखते हैं कौन होगा. आप आएंगे दोबारा? बिल्कुल, डेफिनेटली. और प्लीज फॉलो आर्यन को भी करें और मुझे भी करें. लेखिका एंड टेक्नो आर्यन. और टिल देन कीप रीडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन.